welcome you all on Independent Research Ethics Society's journey of knowledge sharing, journey of inspiration by cross generations, senior to juniors, junior to seniors. We are really overwhelmed with your support, guidance, mentorship. Today is our 664th webinar today, and we will be going to celebrate 665th also today. Yesterday was the Pet Care Day, National Pet Care Day of USA, I hope. So we are celebrating one day later, as we already celebrated 2 webinars yesterday. So thank you for joining. I would like to request Professor Vishnu Prasad Sharma ji for his welcome blessings. Namaskar. Good evening to everybody, respected distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this evening webinar on pet care traditional way. Most important subject today we have. In this webinar, we have eminent speakers. I want to welcome Dr. Narendra Dev Sharma, member UP Go Seva Ayog, Lucknow. Namaskar, sir, and welcome to this evening webinar. Again, I want to welcome Dr. Rajiv V. Goikwad, Professor Veterinary Medicine, Mumbai Veterinary College from Mumbai. Namaskar, sir, and welcome you to this evening webinar on pet care traditional way. So once again, I welcome all the eminent speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this evening webinar. Namaskar, over to Pavanji. Thank you. Thank you very much, sir. Now I would like to request Professor V.K. Agnihotri, sir, for his preamble blessings. Namaskar. Namaskar. Thank you, Professor Kumar Sharma ji. And I welcome our guest speakers, especially respected Dr. Narendra Dev Sharma, sir, and also Dr. Rajiv Gaikwad ji from Mumbai. We all know that every human being have got certain dependencies, and this dependency especially always there. Those who are one of the units of our environment. So was the case with our animals, birds, plants. Sorry. So if we want to live in a healthy manner, we have to keep our earth also very healthy. And it will only be possible when the creatures over the earth, they are healthy or they are properly taken care of. May it be plants, may it be animals, may it be small creatures. So our responsibility becomes much more for the animals, as they are not capable to speak. They understand our language, they understand our emotions, and they also show their emotions. And this is what the tuning in between us, especially as the dogs are told that they are very committed to their owners, and even the street dogs, the homeless dogs, they are also, if taken care of, they also start depending upon the person, those who are taking care of them. So today we are going to learn a lot of informations from our respected distinguished guest speakers, that in what way there may be a proper pet care, and whether the today's way is better or the traditional way which we had been having in our years. So, and how it can be made more and more easy. It's not a much matter that it totally depends upon the money which is to be expended for them. It is also the attachment, the emotion, the proper nursing care whenever they are getting any sort of injury or their delivery time is. So it is very, very important for the society to see
that the area where they are living, those who are also having their place so-called homeless, how they can be managed properly. So we are here to listen, and we welcome our guest speakers. Both have joined already, so there is no question to make any wastage of time. So I welcome all our speakers and return back the for further transmission to Professor Paul. Namaskar. Thank you. Thank you very much, sir. I welcome Dr. Rajiv Gaikwad ji from Mumbai. He has also joined. Welcome, sir. Welcome. First time on the platform, but please do join whenever we request or your topic of choice is there. Welcome, sir. Welcome. So now I would like to request our first speaker, Dr. Narendra Sharma ji. Welcome, sir. आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है. मैं तो ये जानता हूं डॉक्टर नीना शर्मा, जिनकी दोनों बच्चियां बाहर हैं, एक इंग्लैंड में और एक बेंगलोर में, लेकिन अभी 3 महीने पहले जब उनके कुत्ते की मृत्यु हुई तो मालूम पड़ा कि उनको सबसे ज्यादा प्यार उसी से है. 3 महीने में वो आधी रह गई. क्यों? क्योंकि उनको उससे बहुत प्यार था. उसके चले जाने का शोक अभी तक, मतलब एक कंपेयर करना चाहता हूं कि आदमियों से भी ज्यादा हम लोग अपने पालतू पशु से प्यार करने लगते हैं, और यदि उसको कोई कुत्ता कह जाए तो हमें गाली जैसी लगती है. ये एक बड़ा इमोशनल अटैचमेंट रहता है, सेंटिमेंटल अटैचमेंट रहता है. तो मैं ज्यादा न बोलते हुए आदरणीय एनडी शर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं. पेट केयर द ट्रेडिशनल वे. स्वागत है सर. बहुत बहुत साधुवाद. और सबसे पहले मैं सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं. आवाज आ रही है? हार्दिक अभिनंदन करता हूं. पेट केयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पेट का आज केवल आपकी आवाज आ रही है सर? आप म्यूट हो गए. हाँ, अब ठीक है. आवाज आ रही है? अब ठीक है, अब ठीक है सर. ठीक. क्योंकि पेट जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन, जैसे कि कहा कि केवल डॉग्स ही नहीं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, विभिन्न जीव जंतु हैं, ये सभी हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी. पहले आवाज अच्छी आ रही थी सर, अब कम हो गई है अचानक. अब कम हो पहले गई. बहुत अच्छी आवाज आ रही थी. अच्छा, इसमें ये समय कोई बीच में कॉल कर रहा है, उस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है. ओ, कोई बात नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू. तो अब आई हाँ, ये आवाज आई. कंटिन्यू. हाँ सर. ठीक. जब आप पीछे हो जाते हैं तो आवाज कम हो जाती है. अच्छा, तो मैं आगे हो जाता हूँ. क्योंकि डॉग्स जो हैं वो हमारे करीब 9,000 10,000 ईयर्स बिफोर से हमारे कंपेनियन बने हुए, और आज भी उतने ही सुगमता से वो हमारे साथ रह रहे. लेकिन ये आवश्यक हो गया है कि हम सबसे पहले उनकी उपयोगिता जानने से पहले ये जानें कि उनके बिहेवियर क्या है. उनके बिहेवियर के अनुसार हम उनका यदि पालन पोषण करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं. क्योंकि आज डॉग्स जो हैं वो न केवल गार्ड का पर्पज कर रहे हैं, बल्कि लेबोरेटरी एनिमल्स के तरह से लेबोरेटरीज के अंदर विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स उनके ऊपर किए जा रहे हैं. पुलिस के अंदर हमारे लिए वो गार्ड डॉग्स के अतिरिक्त बहुत ही रेस्पॉन्सिबल एक कहना चाहिए सिपाही का कार्य कर रहे हैं, और उसी प्रकार से उनके रैंक्स भी बने हुए हैं. आवाज क्लियर आ रही है? नहीं आ रही है? क्लियर आ रही है सर, क्लियर आ रही है. क्लियर आ रही है? अच्छा. हाँ, क्योंकि मुझे नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं समझ रहा था
कुछ गड़बड़ है। जैसे कि अभी आपने कहा था कि बच्चे जो हैं वो फॉरेन के अंदर हैं, तो मुझे एक कहानी याद आ गई कि एक सज्जन थे, तो उनके घर फोन आया कि दैट योर फादर हैज डाइड। उन्होंने कहा डजंट मैटर, दैट इज ए नॉर्मल थिंग। उनकी एज हो गई थी, डेथ हो गई। जस्ट आफ्टर 1 month his dog died. When his dog died, then he was, उनके लिए फिर से फोन किया गया कि आपका डॉग जो है खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा वेट, आई एम जस्ट कमिंग अंटिल, जब तक कि मैं पहुंचता नहीं हूं तब तक उसका दाह संस्कार नहीं होगा। ही वाज एट अमेरिका। तो ये एक आप देखें कि फादर के लिए और एक डॉग के लिए कितना सामंजस्य हमारे जीवन के अंदर हो गया है कि डॉग जो है वो केवल एक एनिमल नहीं रह गया है, बल्कि हमारे संबंधों से भी अधिक हो गया है। और अब इसकी यूटिलिटी आज के समय में और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आप देखें कि पुलिस के अंदर, मिलिट्री के अंदर, फॉरेंसिक टीम्स के अंदर और विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम उनके लिए प्रयोग करते हैं। केवल गार्ड के पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से उसकी उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है। मैं यहाँ पर सेंट्रल मिलिट्री लेबोरेटरी ऑफ एनिमल में भी गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनी था आपका मैं रिटायरमेंट। तो मैंने देखा कि इस समय जो हमारा डॉग्स का सेंटिमेंट थे या उनकी उपयोगिता थी, वो कहीं अधिक बढ़ चुकी है कि हम वो हमारे लिए केवल कंपेनियन नहीं रह गए हैं, बल्कि हमारे लिए व्यवसाय की दृष्टि से भी और विभिन्न हमारे कहना चाहिए जो डिफरेंट रिसर्चेस हो रहे हैं उनमें भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। लेकिन इनके पालन से पहले हमें एक आवश्यक हो जाता है कि हम देखें कि इनकी बिहेवियर कैसा है, क्योंकि इनकी विभिन्न नस्लें हैं, नहीं अबाउट 200 नस्लें तो यहीं पर हम देखते हैं। तो विभिन्न नस्लों का अलग अलग रिएक्शन है, अलग अलग कर्तव्य हैं और अलग अलग उपयोगिता है। जैसे कि सेंट बर्नार्ड हैं, दूसरे कुछ डॉग्स और हैं जो कि वर्किंग डॉग्स, साइलेज लगा के खींचने काम में करते हैं, लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं। लेकिन कुछ डॉग्स जो हैं वो केवल गार्ड का ही टाइम काम करते हैं। कुछ फैंसी डॉग्स हैं जो कि हम विभिन्न प्रयोगों में उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। और कुछ डॉग्स जो हैं वो ऐसे हैं कि उनकी जो रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस के लिए वो बहुत ही एक अलग उनका महत्व है। जैसे कि हम देखें कि उनके अंदर एक तो अफेक्शन, अफेक्शन के अंदर एक्साइटेबिलिटी, एक्सेस बार्किंग, स्नैपिंग टुवर्ड्स चिल्ड्रन एंड जनरल ऑथेंटिसिटी। दूसरी चीज देखते हैं कि उनके अंदर जो एग्रेसिवनेस है, दैट इज टेरिटोरियल, एंड टुवर्ड्स देयर फीड they are very much aggressive, and as a watchdog they are very useful because they have got a smelling power more than 700 times than human being. Their aggression to other animals, other dogs, and dominance even owner. जैसे कि अभी आपने केस देखा होगा कि 2 केस हुए हैं कि पिटबुल ने जो है ओनर के लिए खत्म कर दिया। तो दिस वाज मिसमैनेजमेंट, जिसकी वजह से कि वो डॉग जो था अपने ओनर के ऊपर ओवरकम कर गया, वरना ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होना चाहिए थी। उसके बाद हम देखते हैं कि उनके अंदर ट्रेनिंग की कितनी कैपेसिटी है। जैसे कि लेब्राडोर है, जर्मन शेफर्ड है, ये लोग उनकी ट्रेनिंग जो है बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन
जैसे पिटबुल हैं, सेंट बर्नार्ड हैं और दूसरे डॉग्स हैं, इनके अंदर ट्रेनिंग करना उतना आसान नहीं है। तो इसलिए हम जब कि अपने घर के अंदर इनके लिए लालन पालन करते हैं तो हमें इनके बिहेवियर के लिए देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि ये डिस्ट्रक्टिवनेस तो नेचर नहीं है इनकी, ये हमारे लिए प्लेफुल है या नहीं है। क्योंकि प्लेफुल अगर ये हैं तो हमारे मस्तिष्क के लिए साइकोलॉजिकली हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। ये उनकी हैबिट है कि उनका ओनर जो है वो हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। आप देखें आमतौर से कि जब भी ओनर घर के अंदर आता है, अगर एक बच्चा है तो बच्चे के लिए जब माँ बाप से लिपटता है तो माँ बाप कहेंगे बैठो अभी हम थके हुए हैं। लेकिन डॉग जो है उसको वो कितना भी मना करे, मार भी दे, लेकिन वो अपना लिपटना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये उसका अफेक्शन है अपने ओनर के प्रति, कि जो कि उसके लिए बाध्य करता है कि अपना प्यार जो है वो उसके लिए कितने से कितना समर्पित कर सकता है। अब जबकि हम इसका पालन लोग करते हैं तो ये डिफरेंट जो ब्रीड्स हैं, इन ब्रीड्स की जो हैबिट्स हैं, एक उनकी इंस्टिंक्ट्स हैं, उनकी फीड रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके अनुसार हमें इनका लालन पालन करना आवश्यक हो जाता है। इसके अंदर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम सिलेक्शन कैसे करें। जिस प्रकृति की हम पालने जा रहे हैं उनका सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे कि कुछ प्योर ब्रेड डॉग्स होते हैं, प्योर ब्रेड डॉग्स जो होते हैं उनका लालन पालन अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो उनके अंदर सोचने की समझने की क्षमता एक स्ट्रे डॉग से कहीं अधिक होती है। लेकिन जब हम देखते हैं क्रॉस ब्रेड डॉग्स के लिए तो एडाप्टेबिलिटी क्रॉस ब्रेड डॉग्स के अंदर और स्टर्डीनेस जो है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता, ये हमारे देशी डॉग्स के अंदर प्योर ब्रेड डॉग से कहीं अधिक होती है। जिसकी वजह से आजकल चलन के अंदर जो क्रॉस ब्रेड डॉग्स हैं या जो डॉग्स विभिन्न ब्रीड के हैं उनको क्रॉस करके नई नई ब्रीड से अडॉप्ट किया बनाई जा रही हैं, वो जो है उनकी अडॉप्टेबिलिटी जो है बहुत अधिक है, जिसके कारण उनका अब इस समय एक इंडस्ट्री बन चुकी है। पहले जो था डॉग केवल एक कहना चाहिए एक समृद्धि का सूचक था या गार्ड के पर्पज से था, लेकिन अब जब से कि इनका मिलिट्री के अंदर उपयोग होने लगा तथा विभिन्न चीजों के अंदर इनका उपयोग होने लगा, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, तब से इनकी उपयोगिता जो है वो बहुत ही बढ़ चुकी है और एक इंडस्ट्री बन चुकी है। तो केवल डॉग्स की नहीं बल्कि डॉग्स की जो प्रोडक्ट्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं उनकी भी एक इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यवसायिक की दृष्टि से डॉग जो है अब वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। इसके अंदर हमको जब भी पालन लालन करते हैं तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं जैसे कि इसमें है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर क्या है कि हम इनके लिए, क्योंकि ये उसके अनुसार से जो इनके टीथ हैं दे आर कार्निवोर्स, क्योंकि इनके जो टीथ बने हुए हैं वो इस प्रकार से हैं जैसे कि इनके लिए कार्निवोर्स होना चाहिए, यानी कि ये मांसाहारी हैं। लेकिन इनके लिए हम ट्रेडिशनली हर जगह पर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इनके लिए हम हर चीज खिलाते हैं। इनके लिए हम दूध भी देते हैं, दही भी देते हैं, सब्जी भी देते हैं, दाल भी देते हैं, रोटी भी देते हैं। लेकिन फिर भी खिलाते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो न्यूट्रिशंस है, न्यूट्रिशन वैल्यू है जिसकी, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये सारी चीजों का उपयोग जो है एक समानता के अनुसार जितनी की एक निश्चित मात्रा है उसके अनुसार उनको मिलना चाहिए। आमतौर से बॉडी वेट का 7 to 10% ऑफ द बॉडी वेट जो फीडिंग है वो शेड्यूल इनके लिए मिलना ही चाहिए। अब इनका फीडिंग जो है बच्चों का अलग है, क्योंकि जब से पहले हम देते हैं बच्चों के लिए,
तो बच्चों के अंदर क्या है कि सबसे पहले लगभग 2 सप्ताह तक या 3 सप्ताह तक माँ के दूध पर रहते हैं। जब माँ के दूध से अलग हो जाते हैं, उसके पश्चात इनके लिए हमको आवश्यकता पड़ती है कि हम इनको बिस्किट भी देते हैं, डॉग फूड भी देते हैं, क्योंकि अब जो है मार्केट के अंदर विभिन्न प्रकार के डॉग फूड भी आ गए हैं। जूस है, पेडिग्री है, रॉयल कैनन है और सो मैनी। अब जो है ट्रेडिशनल फीड जो है वो तो कम हो गया है, बल्कि ये फीचर्ड फूड जो है वो मार्केट के अंदर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यवसाय की दृष्टि से इसका प्रचलन बहुत अधिक हो गया है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जब बच्चा होता है तो बच्चे के अंदर सबसे पहले आवश्यकता होती है कि वो जब माँ का दूध पीता रहता है उस समय हमें ये देखना पड़ता है कहीं इसके अंदर पैरासिटिक इन्फेस्टेशन तो माँ से नहीं आया। तो माँ से जब पैरासिटिक इन्फेस्टेशन आता है तो इसलिए हमको जब बच्चा 15 दिन का ही होता है तभी उसके लिए हम डिवॉर्मिंग कर देते हैं, यानी कीटाणु से जो कि विभिन्न परजीवी हैं जो पेट के अंदर होते हैं उनसे रक्षा करने के लिए हम इसको पेट में कीड़ों की दवा 15 दिन के ऊपर ही दे देते हैं। उसके पश्चात बच्चों के लिए आवश्यक हो जाता है कि इनके अंदर होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे कि विशेष रूप से डिस्टेम्पर है, पारो है, ये विभिन्न जो 6-7 बीमारियां हैं, इनके लिए हम रोकने के लिए हम इनका वैक्सीनेशन करना इनको आवश्यक हो जाता है, जो कि 1 महीने से लेकर के 3 महीने के अंदर निश्चित रूप से हो जाना चाहिए, क्योंकि ये डिसीज जो है वो इनके लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, या डिवॉर्मिंग जो है जो परजीवी हैं वो इनके लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्यों ये परजीवी हमारे अंदर भी इनसे ट्रांसमिट हो सकते हैं और ट्रांसमिट होते हैं। तो इसलिए जब भी हम इनका लालन पालन करते हैं तो लालन पालन के साथ में ये आवश्यक हो जाता है कि हम ये भी देखें कि जो कम्युनिकेबल डिसीज है, जो कई 200 डिसीज से ज्यादा डिसीजेज हैं कि जो हम लोगों के अंदर कम्युनिकेट करती हैं, उनके अनुसार इनका डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। तो इसलिए ये आवश्यक है कि जहां हम इनके खाने के ऊपर ध्यान देते हैं, खाने के अतिरिक्त उनके रहने सहने के अंदर क्या है, उनके लिए जैसे कि छोटा बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए माँ के साथ ही अलग बकेट के अंदर हम उनको रख सकते हैं, लेकिन चूंकि फीडिंग हम के लिए टाइमली देना है इसलिए बकेट को हम उनसे अलग रख सकते हैं, अलग रखना चाहिए, जिससे कि माँ का हर समय वो दूध न पीते रहें, बल्कि टाइमली वो दूध पिए, जिससे कि पेट की गड़बड़ी न होने पाए। दूसरी चीज क्या है कि जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए जैसे कि बॉइल्ड एग है, या कहना चाहिए ये एग से बने हुए विभिन्न पदार्थ जो आजकल आ रहे हैं, इनके लिए प्लस दिन के अंदर 4 या 5 तक है हम उनके लिए देना चाहिए, कि जिससे कि बच्चों का जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो सके, क्योंकि इसलिए उनको हमें कम से कम 4 से 5 दफे फीडिंग करना पड़ती है। इसके लिए हम उनको क्या देते हैं, रा है, रा बॉइल्ड मीट है, अंडा है, और अब आजकल जो है ट्रेडिशनल उसके अंदर दाल है, चावल है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, लेकिन बॉइल्ड। ये इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि जैसे कि दिन के अंदर कम से कम 4 से 5 दफे उनके लिए पर्याप्त खाना निश्चित रूप से मिल जाए, और छोटी एज के वालों के लिए कम से कम 120 ग्राम ऑफ फूड उनके लिए स्मॉलर ब्रीड्स के अंदर निश्चित रूप से मिल जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त 10 to 15 वीक्स उनकी जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन डेली रिक्वायरमेंट कम से कम 250 ग्राम स्मॉल बीट्स के लिए और 800 ग्राम लार्ज बीट्स के लिए भोजन उनके लिए
4 डिवाइडेड डोजेस के अंदर अगर हम दे देते हैं तो उनका पेट वगैरह अपसेट नहीं होता। लेकिन अगर हमने 4 दफे ना दे करके 2 दफे में दे दिया तो एकदम जल्दी जल्दी खा जाएंगे, और जल्दी जल्दी जब खा जाएंगे तो उनका पेट जो है अपसेट हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक पीरियडिकल एक पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर उनके लिए भोजन की मात्रा दी जानी चाहिए और डिवाइडेड डोजेस के अंदर देना चाहिए। जब ये 16 वीक्स के हो जाते हैं तब इनके लिए केवल 2 दफे खाने की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने बताए, ये इंग्रेडिएंट्स तो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन इनकी मात्रा जो है ये स्मॉलर बीट्स के अंदर 500 ग्राम और लार्जर बीट्स के अंदर 1500 ग्राम से लेकर के 2000 ग्राम तक बढ़ जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि जो हम इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं, जैसे कि मीट है, बार्ले है, राइस है, दही है, दूध है, वेजिटेबल्स हैं। क्योंकि कार्निवोर्स है तो इसलिए इनको मीट भी मिलना चाहिए। लेकिन आजकल जो है जो ट्रेडिशनल लोग हैं चाहते हैं नहीं नहीं मीट ना दिया जाए। आजकल काफी इसके ऊपर वेज नॉन वेज के ऊपर वेजिटेरियन चल रहा है, तो उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये आवश्यक है फिर भी इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कार्निवोर्स हैं, कि उनके लिए हम जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम इनके खाने को देते हैं तो नमक, मिर्च के पाउडर, स्पाइसी फीड, ये इनके लिए जहां तक संभव हो सके नहीं देना चाहिए। और दूसरी एक चीज बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अंडा जो है जो हम इनको देते हैं वो बॉइल्ड या स्क्रम्बल्ड देना चाहिए। अगर हम कच्चा अंडा देते हैं तो कच्चे के अंदर एंटी-ट्रिप्सिन फैक्टर एविडिन होता है, और ये एविडिन जो है इनके अंदर लिपिडर्मा डेवलप कर देता है। तो इसलिए जहां तक संभव हो सके इनके लिए हमें, क्या आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। आ रही है? अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। वो आपने वो रखा ना तो मैं समझा कि आवाज नहीं आ रही है। नहीं आया आवाज। अच्छा अच्छा। तो मैंने बताया कि इनके फीडिंग के लिए और इनके जो फीड सप्लीमेंट्स हैं उनके अंदर आजकल जो है कैल्शियम है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इनका भी उचित मात्रा के अंदर दिया जाना आवश्यक है। और आजकल मार्केट के अंदर इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो जो हम फीड के अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स देते हैं वो अपने आप स्वतः ही उन इंग्रेडिएंट्स के माध्यम से इनके लिए प्राप्त हो जाती है। हाउसिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाउसिंग के अंदर सबसे पहली चीज तो ये है कि जो प्राइस बीड्स हैं, छोटी बीड्स हैं, उनके लिए जो उनके पेन हैं वो 1 मीटर लंबा, 75 सेंटीमीटर चौड़ा और 70 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। और उसके बाद जो मीडियम बीड्स हैं उनके अंदर 1.5 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाइट होना चाहिए। और जो लार्ज बीड्स हैं उनके अंदर 2.5 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर हाइट होना चाहिए। और इसमें इनके लिए एनक्लोजर्स के अंदर बेडिंग का भी प्रबंध होना चाहिए। और एयर का जो एक्सचेंज है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एयर एक्सचेंज जो है इस प्रकार से होता रहे कि जिससे कि उनके लिए सफिशिएंट रेस्पिरेशन मिलता रहे। क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि इनके अंदर, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है कि इनकी जो स्किन है उसके ऊपर सेविशियस ग्लैंड जो हैं वो नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल होने की वजह से इनका जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो स्किन के माध्यम से नहीं होता, बल्कि टंग के माध्यम से जो एक्सप्रेशन करते हैं उसके माध्यम से होता है। तो इसलिए इनका नहलाना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, 1 से 20 इज सफिशिएंट या गंदे होते हैं। लेकिन इनकी ग्रूमिंग जो है वो बहुत आवश्यक है। ग्रूमिंग करने से क्या है
कि जो उनकी स्किन है उसके अंदर लस्टर भी आता है और उसके अंदर रेस्पिरेशन मुंह से होता है। उसके एवज जब इनके शरीर के ऊपर अन्य ग्रंथियां जो हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, पसीने की ग्रंथियां तो है नहीं एक्टिवेट के लिए कि जिससे कि वो एक्टिवेट हो सकें, लेकिन अन्य ग्रंथियों के अंदर उनका एक्टिवेशन इस प्रकार से होता है कि उनके लिए स्वयं अच्छा भी लगता है और एक दूसरे के प्रति सामंजस्य की भावना भी बढ़ती है कि डॉग ये समझता है कि हमारे लिए बहुत प्यार किया जा रहा है और हम भी उसके लिए समझते हैं कि वो हमारे लिए बहुत ही आज्ञाकारी होगा। तो ये इस प्रकार से ये विभिन्न एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं और हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैसे कि मैंने बचपन में ही बताया था कि पेट के कीड़े, परजीवी और स्किन डिजीज ये हमारे लिए कम्युनिकेट करती हैं हमसे इनके अंदर और हमारे से इनके अंदर, जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनसे प्रोटेक्शन के लिए हमारे लिए इनकी ग्रूमिंग भी आवश्यक है और मेडिसिन भी आवश्यक है। जब बच्चा जो है 2 महीने का होता है, एक 15 दिन से लेकर के 3 महीने तक का, 2 महीने तक का होता है, उस समय हमारे लिए सबसे पहले डिवॉर्मिंग कर देना चाहिए और प्रत्येक 15 दिन पर करना चाहिए। और जब बच्चा 3 महीने से 6 महीने तक का हो जाता है तब महीने में एक बार करना चाहिए। और जब 6 महीने से लेकर के एबव हो जाता है तब 3 महीने में एक बार इनकी डिवॉर्मिंग जो है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो परजीवी हैं, जो राउंड बाउंस हैं, टेप बाउंस हैं, हैं, तो इन सबसे बचाव के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि ये हमारे लिए हमारे अंदर ही डिसीज जो है इनसे कम्युनिकेट ना होने पाए। इसके अतिरिक्त इनका जबकि सबसे पहला वैक्सीनेशन जो कि पार्वो डीपी कहते हैं, तो इसके अंदर जो है पार्वो है, डिस्टेम्पर है, हेपेटाइटिस है, पैरेंफेंजिया है, एक्टोहेमोरेजिका है, ये डिफरेंट हेपेटाइटिस है। ये विभिन्न ऐसी बीमारियां हैं, विशेष रूप से पार्वो, डिस्टेम्पर और रेबीज, ये ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे लिए बहुत ही घातक हैं। इलेक्ट्रोसाइसिस हमारे लिए लिवर डिजीज में कम्युनिकेट करने में बहुत ही नुकसानदेह है। तो ये ऐसी डिजीज है कि जिनसे बचाव के लिए हमें प्रत्येक सबसे पहला वैक्सीनेशन जबकि बच्चा 1 माह का होता है उस समय पपी डीपीटी लगवा देना चाहिए। और उसके पश्चात जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है या 2 से 3 महीने का हो जाता है तो उस समय हमारे लिए एक जो कहना चाहिए सिविलियन में करके आता है, जो मैंने ये विभिन्न बीमारियां बताई कि हेपेटाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है, पार्वो है, डिस्टेम्पर है, तो इन सब बीमारियों से बचाव के लिए हमें इनका इंजेक्शन लगवा देना चाहिए। और इसके अतिरिक्त उसके पश्चात 45 दिन पर इसका बूस्टर डोज लगवा देना चाहिए। और उसके पश्चात हर साल इनका ये वैक्सीनेशन निश्चित रूप से होना चाहिए। और विशेष रूप से रेबीज जो है वो सबसे डेंजरस बीमारी, डिस्टेम्पर भी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, और लेकिन रेबीज जो है ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण एक दफे आ जाते हैं तो उसका कोई भी उपचार नहीं है, दुनिया के अंदर कोई उपचार नहीं। इसलिए हमारे लिए प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीनेशन रेबीज का जो है निश्चित रूप से सबसे पहला 3 महीने पर, उसके पश्चात 6 महीने पश्चात और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष जब तक जीवित है उस समय तक निश्चित रूप से लगवाना आवश्यक होता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे कि हम अपने एनिमल्स की, अपने डॉग की सुरक्षा भी कर सकते हैं और उस केयर से वो उनकी यूटिलिटी जो है वो हमारे लिए निश्चित रूप से बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम उनके लिए आराम देंगे तो वो भी हमारे लिए निश्चित रूप से ज्यादा सहायक होंगे, क्योंकि ये वाइस वर्सा है। एनिमल्स जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, स्पेशली इन लोगों की जो हियरिंग क्षमता है, सुनने की क्षमता है, वो हम लोगों से कहीं अधिक होती है, सूंघने की क्षमता हम लोग से कहीं अधिक होती है। तो उनका हम लोग
विभिन्न इनसे जो काम लेते हैं, जैसे वर्किंग डॉग्स हैं, पुलिस के डॉग्स हैं, लेबोरेटरी के अंदर डॉग्स हैं, इन सब का जो हम प्रयोग करते हैं, इन सब के अंदर हम इनकी जो शारीरिक क्षमता है उसको अपने प्रयोग में लाते हैं। मैं समझता हूँ कि समय भी काफी हो गया है और इतना आज के लिए पर्याप्त होगा। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपका मैंने जो कुछ भी किया, हो सकता है कुछ चीजें छूट गई हों, कुछ चीजें और आगे हम लोग उन पर विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई और चीज के संबंध में आपके लिए कोई चीज आवश्यक हो तो मैं उसके लिए उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। आपने बड़े सरल शब्दों में और बड़े संक्षिप्त रूप में लगभग सभी ग्रूमिंग बताई। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत ही बहुत। आप जुड़ते रहिएगा, यही प्रार्थना है। मैं आदरणीय डॉक्टर राजीव गायकवाड़ जी, जो मुंबई से हैं, मुंबई वेटरनरी कॉलेज में बड़े कर्णधार हैं, बहुत प्रख्यात हस्ती हैं। पिछली बार भी हम उनको सुनने से महरूम रह गए थे, तो मैं ऐसे अभी रास्ते में हैं। डॉक्टर राजीव गायकवाड़ जी को सादर आमंत्रित करता हूं। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। यू आर, यस। Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। Today's our theme was related with the pet care. So यस with सर। this actually, I have to add some of the points actually. Already sir has elaborated briefly about from maintenance, nutrition, and vaccination, and zoonotic importance of some of the conditions, etc. So that is the important thing. And whenever anyone wants to adopt the pet as a pet, so that pet means that will be one of the family member. And whenever you are taking a decision for the adoption of the pet, so you have to take care and provide the minimum facility like food, proper care, health care, nutrition, as well as their well-being, overall well-being, as well as the other activities, etc. So that will be the important thing. So in this regard, actually, the purpose for the keeping the pet at house, it may be either pet as a companion animal. So generally, they will be preferring the small pets, etc. Or those who are fond of actually larger breeds. Like even some people, they are fond of Saint Bernard or Great Dane like breeds also. So it is a choice of owner actually. So whenever the choice of the owner, depending on that, problem, health issues may be variable actually. So generally, if we consider the smallest breeds like Silky Sydney or Chihuahua, etc. So comparatively, their life will be comparatively longer as compared to the giant breeds, etc. Giant breeds like Great Dane or Saint Bernard, etc. Because their geriatric issue will be starting early, and other problems like if we consider the 40 plus problems of the human, so similar problems may arise in the pet animals. So they will be around smaller breed. It may start after 8 years of the age, but average life, though we are considering 12 to 15 years, so their problem may start after 8 years, 8 or 9 years, etc. But if giant breeds, their problem may start, genetic problem may start from the 4 year onwards. The majority problems like spondylosis are there, spondylosis deforma. Otherwise, other arthritis problems common will be the coxofemoral joint arthritis will be there. Sometimes frozen elbows, etc. will be there. So such type of the problems may arise in the geriatric patient.
we have to consider the pediatric and geriatric. So generally, already Sharma sir had mentioned about the age differences and their care, etc. But we have to consider the age-wise also problem. If we consider the early age, so majority viral diseases are common. Viral diseases like parvoviral gastroenteritis will be there, or coronavirus infection will be there, or distemper will be possible. So those animals who are not vaccinated within a time, or if there is a failure in the vaccination, etc. So with that, the disease outbreak will be possible. And many times, some of the conditions may be infecting to the other animals or other pets, etc. So generally, this virus excretion will be common through the feces, droplet, or discharges from the nostrils, etc. So that's why we have to take care of all these, whatever the discharges or wastes are there. So that should be properly disposed. So that will be the one of the primary aspects. Whenever handling the owner of such infectious conditions, etc., he has to take care of himself also, because sometimes some diseases, suppose some hematuria or hemoglobinuria case is there, fever is there. Many times it may be in the rainy season, it will be like a leptospira incidences like metro cities, etc. will be possible. And waste disposal, etc., should be a proper one. And there should be a self care as well as. Hello, I'm audible. Yes, you are audible. Yes, yes. Yeah. So we have to take care of the leptospira, etc. So majority of the diseases like leptospira is there. Otherwise, rabies is there. So they are the zoonotic important. So we have to take care of ourselves as well as the pet. If pet is healthy, because both of us we are living in a same environment. So that's why we have to take care of each other. If both are healthy, the overall thing will be the healthy. So one health approach should be applicable to these conditions. Another thing will be the whenever conditions like suppose many times we have to periodically update that whatever the seroprevalence data is available. So same data or same strains are available in the vaccine or not. So that correlation will be also required whenever the cases are arising more, etc. So that time such contralateral information will be required actually. The another thing will be the rabies. Regarding rabies, nowadays rabies is a notifiable disease. So whenever we are either handling some rabies cases, rabies means it may be either dumb form or it may be a frenzied appearance or so in that case actually we have to see the symptoms actually. So whenever we are getting a symptoms like either aggravated aggravated conditions are there or frenzied appearance is there, so that will be the uncontrollable behavior. Such animal may bite to any person, may consume inanimate objects, etc. So during that case, or whenever you are finding a sudden change in the behavior of the animal, if suppose animal is aggressive and suddenly if he or she becomes a docile, so that also gives the indication of the rabies. So such type of the things will be need to be noted during a clinical examination, etc. Another thing will be the if suppose some docile animal, the docile pet is there, all of a sudden may get aggressive. So that also need a observation as well as the further investigation, etc. Nowadays, for rabies confirmation, either conjunctival swab examination or salivary examination
जी सर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर। मैं आपको नमन करता हूं कि आप गाड़ी चलाते चलाते भी आप वेबिनार में ज्वाइन हुए। बहुत बहुत आभार आपका। फिर भी हैं? हाँ हाँ, जी सर। Hello. हाँ सर, हाँ सर। Yeah. जी सर। So such type of the abnormal behavior we have to consider, and then we have to suspect for that. Another thing will be the many time people will be asking for the whether if animal is protected against rabies, and once they bite to owner while handling or some scratching or neighbor, etc. Now there is no requirement of the injection, etc. But owners, we have our duty to teach the owner that that whatever the vaccination is given for the protection of their pet from the rabies infection, etc. But they themselves are not having adequate antibody titer against the rabies. So they have to undergo the post-exposure therapy, etc. So that will be the important thing. So likewise, we have to pay the more attention toward the zoonotic diseases. Other thing will be the sometime abortions are there in pets, etc. So that may be the one of the source of the infection for brucella to the either vet, or there may be the possibility of transmission of infection to the other animals. The another thing will be the if suppose cat is there, so common toxoplasma is there as a one of the common source. Hello. हाँ सर। हाँ. Disturbance, sir. Hello. So that will be one thing. Another thing I want to stress on the sometime the condition of the pet. Condition of the pet. We at clinical examination we have to consider whether the pet is having a adequate health or adequate nutrition is there. So in that basis, simple thing will be the whenever the visibility of the ribs, spine, etc. So that type of the animal may be considered as a negative energy balance or thin animal. And another thing will be the if suppose the animal is having a adequate deposit of the fat as well as muscles, etc. over the spine as well as the ribs, etc. If such things are there, then they may be either in the adequate nutrition or there may be the possibility of the obesity depending on the thickness of the muscle as well as the fat, etc. So in such condition, the nutritional management is important either to curtail or either to improve the nutrition and nutritive value for the pets. So many times whenever in the clinics there will be the cachexia animal is there, or there may be the possibility of the negative energy balance. So in that case, we may require to give the nutritional support, either ready-made available food can be increased by 20% or 25%, or we may need some home food adjustment. So in that actually sometimes if suppose pups are there and they need a nutritional support, etc. So generally pups will be required having more energy will be required as well as the protein, etc. So conventionally, I will suggest one formulation which will be having a egg yolk along with it can be you can add the milk cream, and then you can add either sugar or glucose in that. You can mince it and then you can give 1 ml per kg body weight to the pups. So that will be the homemade arrangement can be done, and that will be given in 1 to 2 times in a day. So that will take care of their energy requirement, etc. So such type of the conventional adjustment or management can be done.
Other nutritional supports adequately will be required with the supplementation with the calcium and phosphorus in neonates as well as the pups, etc. We have to take care. There should be a proper genetic evaluation or genetic disorders at clinical conditions like hip dysplasia, etc. So if suppose some animals are having a mother or parents are having a hip dysplasia, they should not be bred. Otherwise, such complications may be possible to transfer to the subsequent generations, etc. So minimum we should, it is our duty to teach the owner to avoid the breeding in such conditions. Another thing will be if suppose Chihuahua, etc. In that also there will be the possibility of the open fontanelles, etc. In foreign countries, they will be doing the surgical corrections, etc. But at our place, there will not be any possibility, etc. So preferably, if such conditions are there, that should be owner should be aware for that, and consequences can be discussed with the owner, etc. So this will be brief about today's talk actually. If any Thank you. questions are there, we'll discuss. So nice of you. So nice of you. Thank you very much. I'm saluting you and your family both. Thank you. Thank you for Thank you. your I'm in zeal, sir. transit. We have stop in between and doing this. Please Thank do you, sir. join. Please do join every day, sir. Thank you. Thank you very Okay, much. thank you, thank you, Agnihotri, sir. thank you. Thank you, Professor Pam Sharma. And great thanks to our both the guest speakers of today's webinar subject, pet care, traditional way, to which extent it is to be maintained or some modernization approach can also be taken. First of all, I would like to say that Dr. N.D. Mishra sir, not only in a detailed description, he talked about the pet. He delivered his speech, I think, completely in such a emotional and affectionate manner that his talk proved that he is just attached with the pets. That's why it is so emotional and so caring that the pet should be taken care of with their own habits and habitat. I mean, as he described that especially the dogs are carnivorous, so they may be rather, though they should be given some non-veg, but because they have become domestic pet and every caste and creed are having the pleasure to have them, so they are not coming forward for the non-veg. Of course, pedigree is there, which we are having. I've got a Labra, say of 7-8 years old female, and pedigree is given. Moreover, whatever they are very choosy, whatever they need, only they take that. Otherwise, you may insist, but not. But the second topic you touched, that they are means by their heart always looking after the owners and the family members. They give full attachment, affection, means they want to come close and call. I was when the falling of hair starts, when I do comb, it becomes very pleasant for them. So these things are very important if they are taken care of in a very close manner. They are always ready to have a good close net. आप म्यूट हो गए हैं सर. Informations regarding the pet important, and these two learned persons, they have probably made a great portion of their life along with the pets for their knowledge, their habits, their food stuff, and also for their treatment. So deworming is a must, as you told, and of course the petting is